اسرائیل کو اب تک یہ لگ رہا تھا کہ ہم دھیرے دھیرے فلسطین کے تمام علاقوں پر قبضہ کرتے چلے جائیں گے، یہ فلسطینی گھر خالی کرتے چلے جائیں گے اور یہ ہمارا مقابلہ نہیں کریں گے، ہمیں جواب نہیں دیں گے، ہم جو چاہیں گے وہی یہ کریں گے۔ اور اب تک فلسطین کے نہتے لوگوں کو، بے گناہوں کو، بچوں کو مار رہے ہیں۔ لیکن نتنیاہو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں حماس کون ہے؟ حماس فلسطین ہے۔ حماس کوئی امریکہ سے آئی سنستھا ہے یا کوئی یونائٹڈ نیشن کے لوگ ہیں، آتنکی ان کے کہنے سے نہیں ہوگا نا، دنیا کا دوچار ہے جو ان کو آتنکی مانتا ہے، لیکن بقیہ کوئی دیش ان کو آتنکی نہیں مانتا۔ جس کے پاس آرمی ہے، جس کے پاس ٹینک ہے، جس کے پاس جہاز ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن جو فلسطینی ہے تو وہ نہتے عوام ہیں، ان کے پاس آرمی نہیں ہے، ان کے دیش کو ابھی تک منظوری نہیں ملی ہے اقوام متحدہ سے، تو اس میں چند لوگ جو اپنی آزادی کے لیے ایک سنستھا بنا کر کے جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ اسرائیل کے حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل سے بھی بھارت نے دوستی نبھائی، شروع میں 7 اکتوبر کا حملہ ہوا تو بھارت نے اس کی نندا کی، اس کے بعد پھر بھارت نے فلسطین کا بھی ساتھ دیا، فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر بات چیت کی، ابھی غزہ پٹی کے لیے بھارت نے اپنی مدد بھیجی ہے، اور بھارت کے لیے فلسطین کے ہمیشہ سے تعلقات رہے، جو پرانی پالیسی بھارت کی۔ 7 اکتوبر کا حماس نے حملہ کیا تو بھارت نے اسرائیل کا ساتھ دیا، اس کو ٹیرر اٹیک بھارت نے کہا، اس کی نندا کی، لیکن 2-4 دنوں کے بعد ہی بھارت کی جو فارن منسٹری ہے اس کا باضابطہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے کہ بھارت فلسطین کے ساتھ ہے، بھارت فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دلانا چاہتا ہے، اس موقف پر قائم ہے۔ تو ایک واضح اسٹینڈ تھا کہ جو آفیشیل اسٹینڈ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کا نہیں ہوتا بلکہ فورن منسٹری کا ہوتا ہے، تو بھارت فلسطین کے ساتھ ہے نہ کہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ پھر بھارت کے وزیر اعظم نے بھی کیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پورے بھارت میں بھی لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں، فلسطین کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، فری پیلسٹائن کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو بھارت بھی ایک طرح سے فلسطین کے ساتھ ہی ہے، لیکن ایک اسرائیل کی سمرتھن بھی ایک رائٹ ونگ طبقہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ لگاتار جنگ جاری ہے جس میں اب تک ہزاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس پر بات کریں گے ملت ٹائمز کے فاؤنڈر شمس تبریز کاشمی جی سے، اور تمام طرح سے ان چیزوں کے جو ہے گہرائی سے ان کی چھان بین کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، کئی ایپیسوڈ بنا کر اپنے چینل پر چلا چکے ہیں۔ جو اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ لڑائی ہو رہی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ لڑائی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کا نہتے فلسطینی عوام پر حملہ ہے، ایک اٹیک ہے، ایک دہشت گردانہ حملہ اس کو کہہ لیجیے، لڑائی نہیں۔ لڑائی تو وہاں ہوتی ہے جہاں دو ملک ہوتا ہے، جو دیش ہوتا ہے، دونوں طاقتور ہوتے ہیں، مطلب دونوں کے پاس ایک آرمی ہوتی ہے، ایک زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کچھ کمزور ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک طرف ایک دیش ہے اسرائیل، جس کے پاس آرمی ہے، جس کے پاس ٹینک ہے، جس کے پاس جہاز ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن جو فلسطینی ہے تو وہ نہتے عوام ہیں، ان کے پاس آرمی نہیں ہے، ان کے دیش کو ابھی تک منظوری نہیں ملی ہے اقوام متحدہ سے، تو اس میں چند لوگ جو اپنی آزادی کے لیے ایک سنستھا بنا کر کے جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ اسرائیل کے حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اپنی زمین کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ لڑائی تو ہے ہی نہیں، یہ سیدھے سیدھے اسرائیل کا دہشت گردانہ حملہ ہے۔ نتنیاہو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اور آتنکوادی ہے، اور وہ فلسطین کے نہتے لوگوں کو، بے گناہوں کو، بچوں کو مار رہے ہیں۔ لیکن نتنیاہو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں حماس کون ہے؟ حماس فلسطین ہے۔ حماس کوئی امریکہ سے آئی سنستھا ہے یا کوئی یونائٹڈ نیشن کے لوگ ہیں، آتنکی ان کے کہنے سے نہیں ہوگا نا، دنیا کا دوچار ہے جو ان کو آتنکی مانتا ہے، لیکن بقیہ کوئی دیش ان کو آتنکی نہیں مانتا۔ امریکہ چونکہ پاور سینٹر بنانا چاہتا ہے اسرائیل کو اپنا، تو وہ آتنکی کہتا ہے، اسرائیل آتنکی مانتا ہے۔ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن، جس کو ادھیکار ہے کس کو آتنکی قرار دینا ہے، کس کو نہیں دینا، اس کا فیصلہ دنیا پر نافذ ہوتا ہے، تو یونائٹڈ نیشن حماس کو آتنکوادی سنگھٹن نہیں مانتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حماس کی حکومت ہے غزہ پٹی کے علاقہ پر، جس پارٹی کی رول ہے وہ حماس ہے۔ حماس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا 2 ونگ ہے، ایک عسکری ونگ ہے القسام بریگیڈ جو جنگ لڑ رہی ہے، جو فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس کا دوسرا ونگ ہے جو غزہ پٹی کے انتظام کو دیکھتی ہے، مطلب میونسپلٹی کا پورا نظام ہو، یا ایجوکیشن کا نظام ہو، یا بجلی کا نظام ہو، ہاسپٹل کا نظام ہو، جو کچھ بھی ایک سرکار کے ذمہ کام ہے، تو حماس وہاں کی سرکار میں ہے، سطح میں ہے، تو جو سطح میں ہے، جس کو لوگوں نے چنا ہے، وہ زبردستی مسلط نہیں ہوئے۔ سال 2006 میں ووٹنگ ہوئی تھی فلسطین اتھارٹی میں، اور وہاں جنتا نے حماس کو ووٹ دیا، ان کو چنا، انہوں نے کہا کہ حماس کو ہم پر رول کرنا چاہیے۔ تو حماس ایک
चुनी हुई सरकार है, उसको दहशतगर्द कहने का कोई इख्तियार ही नहीं है। अब मसला क्या है कि अमेरिका अपनी दादागिरी करता है, हर जगह अपने मन के मुताबिक वो निज़ाम चलाना चाहता है, तो जिससे उसको प्रॉब्लम होती है, जो उसके मुकाबले में सामने आता है उसको दहशतगर्द करके ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी जो हमास ने आकर के फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग शुरू की। इजराइल को अब तक ये लग रहा था कि हम धीरे धीरे फ़लस्तीन के तमाम इलाक़ों पर कब्ज़ा करते चले जाएंगे, ये फ़लस्तीनी घर खाली करते चले जाएंगे और ये हमारा मुकाबला नहीं करेंगे, हमें जवाब नहीं देंगे, हम जो चाहेंगे वही ये करेंगे। और अब तक यही होता आ रहा था। 1956 में माफ़ कीजिएगा 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन की ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 56% हिस्सा इजराइल के लिए दे दिया यहूदियों को और 44% हिस्सा बचा फ़लस्तीनी मुसलमानों का। लेकिन इजराइल ने उतने पर भी इक्तफा नहीं किया, बल्कि जंग लड़ करके 1948 में जो फ़लस्तीनियों का जो हिस्सा अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया था उस पर भी इन लोगों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर 1967 में जंग करके हमला करके अच्छे खासे एरिया यानी गज़ा पट्टी पर भी कब्ज़ा कर लिया, वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा कर लिया, मशरक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। तो अब इन लोगों ने सोचा कि ये तो धीरे धीरे कब्ज़ा करते जा रहे हैं। अब नक्शा देखेंगे कि 1947 का नक्शा था और 67 में इतना हो गया और फिर आजकल बिल्कुल पूरा फ़लस्तीन ही ख़त्म हो गया है। तो हमास 1947 में कायम हुई और इसलिए कायम हुई कि हमें अपना वतन वापस लेना है, अपनी ज़मीन वापस लेनी है, इजराइलियों को यहाँ से भगाना है। तो अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब अमेरिका ये चाहता है कि कोई भी इजराइल के ख़िलाफ़ जंग न लड़े, कोई भी आज़ादी के लिए जद्दोजहद न करे। और ये कोई अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया का वो तमाम मुल्क या दुनिया की वो तमाम ताकतें जो किसी मुल्क पर कब्ज़ा करती है, किसी मुल्क में अपनी हुकूमत बनाती है, तो नहीं चाहती कि उस मुल्क की आवाम उसके ख़िलाफ़ बगावत करे, उसके ख़िलाफ़ जंग लड़े, उसके ख़िलाफ़ कोई कोशिश करे। और ऐसा कोई करता है तो उसको वो जालिम, बागी और दहशतगर्द करार दे करके उसको कुचल देने की कोशिश कर दे ताकि उनका जो इक़्तिदार मजबूत रहे। खुद हिंदुस्तान की मिसाल ले लीजिए, हिंदुस्तान पर ब्रिटिश एम्पायर ने तकरीबन 200 साल तक राज किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो पहली बाज़ाब्ता लड़ाई हुई वो 1857 में। अब 1857 की इस लड़ाई को गदर का नाम दिया जाता है। गदर का नाम आप समझते हैं, एक बगावत, एक धोखा, या मतलब इक़्तिदार के ख़िलाफ़ धोखा करना या उनके ख़िलाफ़ बगावत करना। यही तारीख़ में टर्म है, हम लोग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसका मतलब है कि ब्रिटिश ने हमें दहशतगर्द कहा, जालिम कहा। दहशतगर्द की या टेरर की इस्तिलाह उस वक्त राइज नहीं थी, उस वक्त बागी कहा जाता था, जालिम कहा जाता था। आज उसी का नया वर्जन टेरर आ गया है। तो जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ 1857 की जंग की और पूरी प्लानिंग के साथ कि ये यहाँ से भाग जाए, इनको शिकस्त हो, लेकिन उनको शिकस्त नहीं हो सकी। जिन लोगों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, हालांकि उसमें भी ज़्यादा मुसलमान ही शरीक थे उस जंग में, तो यही लोग पकड़े गए, इनकी शहादत हुई। जगह जगह मुसलमानों का या स्वतंत्रता सेनानी जो थे, हिंदुस्तानी थे, इन सब का कत्ल किया गया। तो अंग्रेज़ों ने इसको बगावत का नाम दिया, गदर का नाम दिया और इनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक तरह से फांसी के फंदे पर लटकाना आम कर दिया। तो जो कोई भी आज़ादी की लड़ाई लड़ता है उनका ये अंजाम होता है, जो सामने वाली ताकत होती है वो इनको बागी, दहशतगर्द करार देती है। तो वही हमास के साथ हो रहा है। भारत की भूमिका क्या, कैसे देखते हैं इस चीज़ में, दोनों की जंग, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में भारत की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत को अब 2 हिस्सों में, बल्कि मैं कहता हूँ 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए भारत को। एक भारत की सरकार है, एक भारत की राइट विंग जनता है, एक भारत का जो सेकुलर मिजाज रखने वाला तबका है। तो भारत की सरकार के ताल्लुकात चूँकि इजराइल से भी हैं और फिलिस्तीन से भी है, तो भारत की सरकार ने ताल्लुकात को गोलमोल रखने की कोशिश की है। इजराइल से भी भारत ने दोस्ती निभाई। शुरू में 7 अक्टूबर का हमला हुआ तो भारत ने उसकी निंदा की। उसके बाद फिर भारत ने फ़लस्तीन का भी साथ दिया, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बातचीत की। अभी गज़ा पट्टी के लिए भारत ने अपनी मदद भेजी है और भारत के लिए फ़लस्तीन के हमेशा से ताल्लुकात रहे, जो पुरानी पॉलिसी भारत की, तो हमेशा भारत ने फ़लस्तीन का साथ दिया है। भारत की का ये मौक़िफ़ है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील होनी चाहिए। सबसे शुरू में ही भारत ने उसको मंजूर भी किया था और सारे लोग भारत के रहे। 1992 तक तो भारत का इजराइल से सफारती रिश्ता था ही नहीं। इजराइल का सफारत खाना भी भारत में 1992 तक नहीं था, ये सब 1992 के बाद हुआ है। तो भारत का फ़लस्तीन के साथ ज़्यादा गहरा ताल्लुक़, और इसलिए भी चूँकि अरब ममालिक के साथ इन दोनों भारत के ताल्लुकात अच्छे बन रहे, रिश्ते अच्छे बन रहे, बिजनेस को लेकर के, दूसरे सेक्टर को लेकर के। तो इसलिए भी ज़रूरी है भारत के लिए फ़लस्तीन के साथ रिश्ता अच्छा बेहतर बनाना, और भारत ने उसको कायम रखा। अब देखिए कि
जब पहले दिन यानी 7 अक्टूबर का हमास ने हमला किया तो भारत ने इसराइल का साथ दिया, इसको टेरर अटैक भारत ने कहा, इसकी निंदा की। लेकिन 2-4 दिनों के बाद ही भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका बाज़ाब्ता ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है कि भारत फ़लस्तीन के साथ है, भारत फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिलाना चाहता है। उस मौके पर कायम तक वाज़ेह स्टैंड था कि जो ऑफिशियल स्टैंड होता है वो प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री का होता है। तो भारत फ़लस्तीन के साथ है, न कि इसराइल के साथ है। फिर भारत के वज़ीर आज़म ने भी किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जगह जगह पूरे भारत में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा रहे हैं। तो भारत भी एक तरह से फ़लस्तीन के साथ ही है। लेकिन एक लोग इजराइल के समर्थन भी एक राइट विंग तबका है जो कट्टरपंथी है, जो आरएसएस बजरंग दल से जुड़ा हुआ तबका है। तो वो तबका है कि हिंदुस्तान में कहीं भी, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कहीं भी किसी मुसलमान के साथ ज्यादती होती है, किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, कोई मुसलमान प्रॉब्लम में नजर आता है, तो इस पर इनको खुशी मिलती है, इनके दिल को तसल्ली मिलती है, इनकी आँख ठंडी हो जाती है। तो इसलिए खुशियाँ मनाते हैं इजराइल को। अब इजराइल को ये क्यों सपोर्ट कर, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। जिस दिन 7 अक्टूबर को हुआ था तो ट्विटर पर लगातार ट्रेंड चल रहा था, इंडिया स्टैंड विद इजराइल, सारा राइट विंग तबका चला रहा था। एक स्पेस हुआ ट्विटर पर, मैं भी उसमें बोल रहा था। तो यही जहन में बार बार सवाल था, लोग पूछ भी रहे थे कि आखिर इजराइल का ये लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो यहूदी हैं वो मुसलमानों से ज्यादा करीब हैं, लेकिन यहाँ के ब्राह्मणों से या हिंदुओं से या किसी सनातन धर्म के मानने वालों से यहूदियों का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। वो पाप मानते हैं बिल्कुल, वो तो एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, वो तो हमारे हैं। थोड़ा सा हमसे डिफरेंस हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, हम भी नबी मानते हैं। जितने अंबिया किराम हैं, हजरत ईसा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उन तमाम को नबी मानते हैं, हम भी नबी मानते हैं। हमारा ईमान है कि हजरत मूसा और जितने उनके नबी हैं, जिनको अपने प्रोफेट कहते हैं, उनको हम नबी नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं रह सकते। जरूरी है तो तमाम, अब जरूरी का था कि जब आखिरी नबी आए तो उसको उन्हें भी नबी मानना था, लेकिन उन लोगों ने हसद में जलन में नहीं माना, उनके उलमा ने उनको मिसगाइड किया। इस वजह से वो यहाँ से हमसे अलग हो गए। इस्लाम में वो शामिल हैं, लेकिन वो एक अल्लाह को मानते हैं, वो गाय का गोश्त खाते हैं, वो खतना कराते हैं, यानी कोई भी चीज़ इनकी मैच नहीं खाती है। वे नस्ल पर यकीन रखते हैं, वो अपने आप को सबसे बरतर कहते हैं। तो इनसे तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। मुसलमानों से तो उनका एक ताल्लुक है और हसद की लड़ाई है। वो चाह रहे थे कि जो आखिरी प्रोफेट हो वो हमारी नस्ल में आए, वो आगे हजरत इस्माइल की नस्ल में, यहाँ से उनको एक लड़ाई हो गई। तो ये लड़ाई है मुसलमानों से उनकी वजह, और हालिया मामला तो अलग है। तो इनका तो उनसे कुछ भी मैच नहीं खाता। तो ये जो उनका समर्थन कर रहे हैं बस इसी वजह से कि इनको मुसलमानों से प्रॉब्लम है, मुसलमान तकलीफ में है, मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, ये इनको खुशी दे रही है। कुछ दिन पहले यही लोग कह रहे थे कि हाँ, जो कुछ देश में जो हमारे लोग हैं वो आज फलस्तीन के साथ हैं। कल को अगर हमारी लड़ाई किसी देश के साथ हो जाए, पाकिस्तान के साथ हो जाए, तो ये लोग हो न हो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? अरे देश उनका कैसे हो गया? अगर हमारे देश की लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ या किसी के साथ, तो हमारी लड़ाई है ना। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम यहाँ के शहरी हैं, हम कोई भारत से आए हुए नहीं है। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे उनका तो नहीं पता, लेकिन मुसलमानों की तो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि मुसलमानों ने हमेशा भारत को बनाया है, भारत की तामीर और तरक्की की है। हिंदुस्तान की अगर आज दुनिया भर में पहचान है, शनाख्त है, तो किसकी वजह से है? मुसलमानों की वजह से है। मुसलमान वाहिद कौम है कि अगर बाहर के भी मुसलमान यहाँ पर राज करने आए तो यहीं के होकर रह गए। वो अंग्रेजों की तरह बाहर से बैठकर भारत को लूट नहीं रहे थे, यहाँ का पैसा वहां लेकर के नहीं जा रहे थे। तो उनको ये कहना ही गलत है कि अगर हमारी लड़ाई हो गई किसी के साथ तो उनका साथ देंगे। ये तो उनके लिए कहा जा सकता है जो बाहर से आए हुए हैं, और बाहर से आए हुए वो हैं, उनका डीएनए मैच नहीं कर रहा है। जो मुसलमान है वो यहीं के शहरी हैं, और वो खुद अपनी भारत की आज़ादी के लिए पहले भी लड़ते रहे हैं, हमेशा लड़ेंगे, कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनसे पूछिए कि जरा वो इतिहास पढ़े, तारीख पढ़े कि जब अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो सामने कौन थे, मैदान को किसने संभाला था, सबसे ज्यादा फांसी किस कौम की हुई। उसमें नाम 90% मुसलमानों का आएगा, 10% उनके लोगों का नाम नहीं आ पाएगा, उनको नाम याद नहीं होगा। उनसे पूछे कि तुम 10 मुजाहिदीन आज़ादी और फ्रीडम फाइटर के नाम गिना दो। अच्छा, कुछ दिन पहले जो है, जब तक देश के प्रधानमंत्री ऑफिशियल उनका जो है फिलिस्तीन के समर्थन में कोई ट्वीट नहीं आया था, तब तक तो ये लोग कह रहे थे कि देश हमारा इजराइल के साथ खड़ा है, तमाम देश के लोगों को इजराइल के साथ खड़े होने चाहिए। लेकिन जब मोदी जी का एक ट्वीट आता है, वे फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग जो है इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, बस इनको प्रॉब्लम यही है कि मुसलमान
दिक्कत में है, मुसलमानों के बच्चे मर रहे हैं, औरतों पर इजराइल बमबारी कर रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, यही इनको प्रॉब्लम है। क्योंकि इनको इस्लाम से नफरत है। जो आरएसएस है ना, जो हिंदुत्व, इनको एक बात जो लगती है हमेशा कि हिंदू धर्म के फ़रोग में, सनातन धर्म के आगे बढ़ने में जो रुकावट है वो इस्लाम है। अब इंडिया में 30 करोड़ मुसलमान हैं। क्या 30 करोड़ मुसलमान बाहर से आए हुए हैं? नहीं, वो सारे यही के रहने वाले हैं। और दुनिया में मुसलमान, इस्लाम धर्म तो 1400 साल पहले आया ना, उससे पहले दूसरी शरीयत थी। इस्लाम की जो बेसिक तालीम है तो शुरू से है, लेकिन नबी बदलते रहे हैं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए वो इस्लाम 1400 साल पहले। तो इससे पहले कुछ ईसाई थे, कुछ यहूदी थे, कुछ काफिर थे, किसी धर्म पर यकीन नहीं रखते थे या कुछ मूर्ति पूजा करते थे। तो इन सब लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो इस्लाम मजहब में कशिश है, सच्चाई है, रियलिटी है, मुसावात है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, इंसाफ है। तो जो कोई भी कुरान करीम को पढ़ता है, इस्लाम को पढ़ता है, इस्लाम के निज़ाम को समझने की कोशिश करता है, मुसलमानों से मिलता है, उनके अखलाक को देखता है, तो वो मुतासिर होता है इस्लाम से और वो इस्लाम अपनाता है। भारत के 30 करोड़ लोग यहीं के रहने वाले हैं और वो यहाँ के छूत, यहाँ का जो निज़ाम है, ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जिसमें इंसानों को बराबरी नहीं है, मसावत नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई आका होगा, कोई गुलाम होगा, तो इस निज़ाम से तंग आकर उन्होंने इस्लाम को अपनाया है। तो जो कोई भी इस्लाम को पढ़ता है वो मुसलमान होने की कोशिश करता है, इस्लाम को अपनाता है। और आज भी दुनिया भर में इस्लाम फैल रहा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, पहाड़ पर जाइए, समुंदर में जाइए, जंगल में जाइए, हर जगह आपको मुसलमान मिलेगा। यूरोप के किसी मुल्क में चले जाइए, अफ्रीका में चले जाइए, हर जगह इस्लाम और मुसलमानों के मानने वाले हैं। तो इन चीज़ों से इनको प्रॉब्लम को लगता है कि अगर अपने लोगों को हमें हिंदू बनाए रखना है, उनको मुसलमान नहीं होने देना है, तो इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी करो, इस्लाम को बदनाम करो, मुसलमानों को उल्टा सीधा कहो, इनको दहशतगर्द साबित करो, इनका कैरेक्टर ख़राब करो, ताकि हमारे समाज के जो लोग हैं वो मुसलमानों से नज़दीक ही ना हो, वो इस्लाम को पढ़ें ही ना। आखिरी सवाल, आपने तो इस चीज़ की गहराई से एकदम बिल्कुल ही देखा है कि नज़दीक से, ये फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई आखिर कब तक चलती रहेगी? देखिए, जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा नहीं मिल जाता है और जब तक इजराइल ह्यूमन राइट्स के उसूलों की पाबंदी नहीं करता है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को नहीं मानेगा, वो इंटरनेशनल लॉज की पाबंदी नहीं करेगा, उस वक्त एक लड़ाई नहीं लड़ सकती है। क्योंकि जो लोग हैं ना वो मजलूम है, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इजराइल ने अपना सब कुछ खो दिया। इजराइल ने पिछले 70 सालों में अपनी एक इमेज बनाई थी, अपना वक़ार बनाया था। आपने भी सुना होगा, सब सुनते हैं कि भाई इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, मीडिया में इजराइल बहुत आगे है, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है बहुत मजबूत है, नंबर 1 है मोसाद। अब इस मामले में सब कुछ एक्सपोज हो गया। हमास के लोगों ने उनके नाक के नीचे जहां उनकी आर्मी रहती है वहां पर इतने बड़े हमला की प्लानिंग कर ली, उनकी एजेंसी को कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बॉर्डर बना रखा था वॉल कि कोई चूटी भी वहां पर आएगी तो उसका सेंसर पकड़ लेगा, कोई परिंदा उधर से इधर पर नहीं मार सकता। इतना सिक्योर होने का दावा किया था। उस दीवार को लोगों ने तोड़ दिया, वहाँ से अंदर ही आ गए। उनकी आर्मी के बारे में दावा किया जा रहा था, हथियारों का दावा किया जा रहा था, और 4 दिनों तक इनको पता ही नहीं चला कि सब कैसे हुआ। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है कि अभी तो हम हालत जंग में हैं, 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ हमारे साथ उसका पूरा जायजा लिया जाएगा, जिम्मेदारी तय की जाएगी, कौन कसूरवार है, सबको उसका हिसाब देना पड़ेगा, कितना बड़ा हमला हमारे मुल्क पर कैसे हुआ। तो इजराइल ने पिछले 70 सालों में जो अपना एक वकार बनाया था, पूरी दुनिया में अपनी एक ढोंस जमा रखी थी टेक्नोलॉजी की, और इस वजह से लोग उसकी टेक्नोलॉजी खरीद रहे थे, उसके हथियार को खरीद रहे थे, उसकी एजेंसियों पर भरोसा कर रहे थे, उसकी खिदमत ले रहे थे, और इजराइल की मैशत बेहतर हो रही थी। अब ये सब कुछ इजराइल का ख़त्म हो गया है, 100 साल पीछे चला गया। दोबारा ये ट्रस्ट हासिल करने के लिए, एतमाद हासिल करने के लिए इजराइल को 100 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इजराइल ने अपना बहुत कुछ खो दिया है, बहुत बड़ी उसकी हार हुई है। फ़लस्तीनियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अपना वतन पहले खो चुके हैं, अपने हज़ारों लोगों को हर साल वो खुद शहीद होते हुए देखते हैं। तो इस मरतबा भी वो अपने लोगों को शहीद कर रहे हैं अपने वतन की आज़ादी के लिए। और कोई भी जो आज़ादी की लड़ाई होती है, कोई भी जो कामयाबी मिलती है बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद, जिद्दोजहद के बाद, तो उनको लग रहा है कि हमारा वतन पहले छिन चुका है, अब मरना ही है तो इज़्ज़त के साथ मरो। शहादत के तमन्ना में, शहादत के शौक़ में वो जंग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ थे मिल्लत टाइम्स के फाउंडर शम्स तबरेज़ काशमी जी, और इन्होंने अपनी बात रखी है। बाकी आप कैसे देखते हैं इस तमाम चीज़ों को, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।